मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक 2 दिवसीय मेगा इवेंट का समापन। शैक्षिक और उद्योग क्षेत्र में नई दिशा। हेडलाइंस 24 के संपादक संतोष योगी सहित कई पत्रकारों का हुआ सम्मान। आपको बता दें, भोपाल सेंट्रल ग्रुप का मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक 2 दिवसीय मेगा इवेंट का समापन हुआ। यह आयोजन भोपाल की होटल विन एंड वेव्स में हुआ, जिसमें शैक्षिक और उद्योग क्षेत्र में नई दिशा, जिसमें देश के कई प्रमुख नेता, डॉक्टर, पत्रकार, समाज सेवी और महान हस्तियां सम्मिलित हुई। कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। कैसे युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए, कैसे स्वास्थ्य को और बेहतर बनाया जाए, कैसे मीडिया जगत में नई क्रांति लाई जाए। इन तमाम मुद्दों पर 2 दिन चर्चा हुई। इसके साथ समापन हुआ। इस अवसर पर भोपाल के कई पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया, जिसमें मुख्य रूप से हेडलाइंस 24 के संपादक संतोष योगी और भोपाल हेडलाइंस के पत्रकार सौरभ नाथ और इसके साथ कई पत्रकारों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम का पूर्ण संचालन सेंट्रल ग्रुप द्वारा किया गया। इसके संचालक डॉक्टर नितिन वर्मा ने इस सफल आयोजन के लिए सभी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। जो क्या बोल रहे हैं उनसे एक्सपीरियंस लेके इनके अंदर भी कुछ मोटिवेशन होता है तो वो बढ़ते हैं। तो अपना नाम बता दो, आप कैमरामैन कहाँ के? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सौरभ नाथ, मैं सर योगी सर के साथ रहता हूँ कैमरामैन। इसका समापन होने जा रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन वर्मा, चेयरमैन सेंट्रल ग्रुप इंडिया एज वेल एज सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स मध्य प्रदेश। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं और सम्मानीय पत्रकारों का हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि आपने इस 2 दिवसीय कार्यक्रम, जो मध्य प्रदेश के इतिहास में पहला एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें for the first time in the history of Madhya Pradesh we have organized an event in which we have involved healthcare sector, pharmaceutical sector, sports sector, media sector and insurance sector. The opening ceremony of this event was conducted yesterday, in which our chief guest was Chairman Nagar Nigam, respected Kishan Suryavanshi sir, my teacher as well as the former minister of the Madhya Pradesh government of Congress, respected Dr. Ajay Shankar Mehta sir, who is currently director of Bhopal Care Hospital. They both came and given their precious time for the opening ceremony of this one of unique kind of event which happened in at Wind and Waves hotel, and the other guest speaker who involved and given their precious time and esteemed presence in this event were Dr. Saraj Jain sir, owner of the Janam Sri Hospital, a well-renowned gastroenterologist. After that, Dr. R.S. Sahu sir came, who is also a well-renowned personality in the department of psychology, and he was the ex-professor of Gandhi Medical College Psychology Department, and currently he is running a neuropsychiatric center in Kohefija Hospital, and his daughter Samiksha is leading that unit. Other than that, Pankaj Manoria, the owner of Manoria Heart Care Hospital, he also came and given his precious time and told us about what are the things which we need to be focused and take care for our heart. So he has given his learnings and what are the new things in the sector of healthcare and medicine which we need to take care of this. Other than that, today there were some entrepreneur talks also during this 2 days event, and now we are concluding this ceremony with an grand after a grand celebration, and we have got some of good entrepreneurs from Ahmedabad as well as from Bhopal, and some of the leaders of BJP government. For example, Manoj Katarji from Vidisha also came yesterday, and he has given his entrepreneur talk on the Sri Ram Group which he founded, and now he is running that Sri Ram Group in Vidisha, and he is also running a multi-specialty hospital in Vidisha. Sir, कैंसर को लेकर भी आपने देखिए, ये जो 2 दिवसीय प्रोग्राम हमने जो डॉक्टर्स डे पे रखा है, तो इसकी थीम हमने जो रखी थी, कैंसर रखी थी, फाइट कैंसर एंड सेव लाइफ। जैसे कि हमारे यहाँ पे पूरी सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की टीम मौजूद है। हमारे रिस्पेक्टेड सर डॉक्टर प्रणय कमल सर, जो हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, हमारी रिस्पेक्टेड नेहा वर्मा, जो पूरा इन हाउस सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का देखती हैं, CEO हैं हमारे सेंट्रल ग्रुप इंडिया की, एज वेल एज हमारी अर्नाचली जो पूरा मैनेजमेंट संभालती हैं, और अदर हमारी टीम जो यहाँ पर मौजूद है सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की, टू फाइट कैंसर एंड सेव लाइफ। क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी हो चुकी है जो एक जानलेवा बीमारी भी है। तो हमारा इस टीम को लेने का मेन पर्पस यही था कि किस तरीके से जो भोपाल के और प्रदेश के सारे कैंसर स्पेशलिस्ट एक मंच पे हम लोग लाएं और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि कैंसर की बीमारी से कैसे लड़ा जाए।
और कैंसर से कैसे अपने आप को बचाया जाए और क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाए जिससे कि हम आगे आने वाली इन कैंसर की बीमारियां जो एज के साथ बढ़ती जाती है, जैसे कि एक डायबिटीज़ एक घातक बीमारी है जो 40 साल के बाद हर किसी को हो जाती है, डायबिटीज़, थायराइड, और आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हार्ट अटैक्स युवाओं में आ रहा है। जो जिम में काम कर रहे हैं उनको भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। कहीं चलते चलते इतना स्ट्रेस दिमाग में, काम का लोड इतना है कि कहीं घूमते घूमते ही किसी को हार्ट अटैक आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों के सुपर स्पेशलिटी गेस्ट लेक्चर हम लोगों ने रखे 2 दिन में, और सभी बड़े बड़े डॉक्टर्स ने अपना अपना अनुभव शेयर किया है और बताया इस मंच के माध्यम से, सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के माध्यम से, कि कैसे डॉक्टर्स अपने अपने इन नई चीज़ों से अपने परिवार वालों को एज वेल एज जो जनता जो सुनने आई यहाँ पर उनके परिवार वालों को कैसे बताया जाए कि ऐसे बचा जाए और आगे स्टेप्स कैसे लिए जाए। स्पोर्ट्स के लिए कर दिया। हाँ, देखिए स्पोर्ट्स सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व था, तो इसमें हमारे जो माननीय हमारे नेशनल प्रेसिडेंट मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया के रिस्पेक्टेड अरुण शर्मा जी भी मौजूद रहे हैं, वो भी अभी आने वाले हैं, और हमारे पुनीत चतुर्वेदी जी जो एडवेंचर स्पोर्ट्स यहाँ पर रन करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी मध्य प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट हैं मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया के, और मैं भी एक मीडिया पर्सन आप ही लोगों की तरह एक छोटा सा पत्रकार हूँ जो सीख रहा हूँ चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं मुझे भी एक अच्छा आप लोगों से सीखने को मिला, सभी पत्रकार बंधुओं से, जो आज और 2 दिन अपने पूरे प्रीशियस टाइम निकाल के, क्योंकि कल प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव भी थे तो सारे पत्रकार बंधु वहाँ पर थे, बट फिर भी वो हमारा इंपॉर्टेंस देखते हुए कहीं ना कहीं हमारे लिए इस 2 दिवसीय प्रोग्राम में शामिल हुए और अपना बहुमूल्य समय दिया। तो स्पोर्ट्स का सेक्टर भी हमने इसमें इन्वॉल्व किया था, क्योंकि हमारा एक एस्पायर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करके हमारी कंपनी रन होती है, जिसका मेन विजन एक ही है कि जो खेल क्षेत्र में छोटी छोटी प्रतिभाएं, नन्ही प्रतिभाएं जो एक गली क्रिकेट टाइप का या कुछ भी जो अलग अलग स्पोर्ट्स में मौजूद है, उनको कैसे आगे लाया जाए। कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल फैक्टर की वजह से, जैसे क्रिकेट को देखा जाए तो आईपीएल में बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकल इम्पैक्ट, या इंडियन टीम में या हॉकी टीम में कहीं भी किसी को जाना है तो बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो उस सबको हमें ग्राउंड लेवल पर खत्म करना है और जो ओरिजिनल प्रतिभा हमारे देश की है उनको आगे लेके जाना है, यही हमारा एक मोटिव था। सर, इसके अंदर देश में देखा जा रहा है मिलावटी चीज़ें ज़्यादा है, हेल्थ के प्रति कितनी जागरूकता लाना चाहिए, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, मेरे आपके चैनल के माध्यम से भारत की, देश की और यहाँ के जितने भी इंटीरियर गांवों की जनता जो भी हमें सुन पा रही है, एक ही मैसेज मैं अंत में देना चाहूँगा, क्योंकि हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसका आपको, आपके परिवार को और आपके जो बच्चे हैं उनका बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि आज की जनरेशन ऐसी है कि खाना पीना ऐसा हो रहा है कि बच्चे फास्ट फूड की तरफ मुड़ चुके हैं।